मोमिनीन मोमिनात आपसे दरख्वास्त है एक मर्तबा सूरह मुबारक फातिहा 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे बिरादर बुजुर्ग हाजी अब्बास रज़ा शाह रिजवी और रिजवी फैमिली ज़ाकिरीन और नाजरीन के जमी मरहुमीन मरहुमात बिलअख़स हाजी साहब के वालिदैन शरीफ़ैन और मरहुमा ज़ौजा सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिजवी बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह बुखारी को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सलावा। बिरादरान ख़ाहरान ईमानी, आज जो माह ज़िलहज्जा में शबे जुमुआ की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है, ये अमाल शब जुमा के ज़ैल में आखिरी मजलिस है। अब इंशाअल्लाह फिर अयाम अज़ा के बाद ये सिलसिला सारी होगा। आज की मजलिस को मैंने मुख्तस किया है इमामतो विलायतो खिलाफतो विसायत मौला अली अलैहिस्सलाम से।
برادران و خواہران اسلام و ایمان، یہ بات اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بقول علماء اہل سنت کے 200 آیات میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بعض نے 300 بھی لکھی اور پھر بعض نے تو 600 تک بھی آیات لکھی جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں۔ اس بات پر اتفاق تھا اصحاب رسول کا کہ حضرت علی علیہ السلام ان سب سے افضل و برتر ہے۔ اللہ عز و جل نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ میں بستر نبی پر سونے کے عوض مولا علی کو اپنی رضاؤں کا مالک بنایا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے ذیل میں جب علی نے انگوٹھی دی ہے حالت رکوع میں سائل کو تو ولایت کی سند عطا فرمائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کے ذیل میں میدان غدیر میں 1,20,000 باختلاف روایت کے صحابہ کرام کے مجمع میں نبی کریم سے کہلوایا، جنہوں نے علی کا بازو پکڑ کے کہا اس آیت کے ذیل میں حکم الہی کے تناظر میں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ عز و جل نے آیہ نجوہ میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ آپ نے صدقہ دیا اور نبی کریم سے نجوہ فرمایا۔ آیات الصراط المستقیم جہاں جہاں نازل ہوئی ہیں ان سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ مشتقات ایمان کو اللہ نے 1000 جگہ قرآن میں استعمال کیا، 79 ٹائمز تو صرف یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس کا لب لباب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ 12 مرتبہ ذکر امامت آیا ہے اور 12 ہی امام ہیں شیعیان علی کے، اولہم علی و آخرہم مہدی۔ جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا ما عدتہم یا رسول اللہ، تعداد کیا ہے ان اماموں کی، خلیفوں کی آپ کے بعد، تو آپ نے فرمایا اے جابر عدتہم عدت الشہور عند اللہ فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک جتنی تعداد مہینوں کی ہے اتنی ہی تعداد میرے بعد میرے خلیفوں کی اور امت کے اماموں کی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیات ولایت میں، آیات خلافت میں، آیات دال بر عصمت میں، آیات ایمان میں، آیات تقوی میں جلی یا خفی طور پر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہ ایک دعا ہے، دعا کرنے والے تو بہت ہیں، دیکھنا ہے کہ کائنات میں امام المتقین کس امام کا لقب ہے۔ سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کائنات میں کوئی امام المتقین نہیں گزرا، حتیٰ کہ ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں، جو حضرت ابو بکر صاحب ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں،
सकीफ़ा बनी साइदा के यूनानिमस खलीफा है, हम उनको खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा सकीफ़ा, खलीफा शूरा मानने को तैयार हैं, मगर खलीफतुर रसूल नहीं मानते। इसलिए कि अगर हज़रत अबू बकर साहब को इतना ख्याल था कि उनके बाद हज़रत उमर साहब को खलीफा होना चाहिए कि उम्मत को लावारिस न छोड़ दिया जाए, तो दो जहां का सरदार किस तरह उम्मत को लावारिस छोड़ गया और किसी खलीफा का, इमाम का, हादी बरहक का, वसी का, जान नशीन का, मौला का, वली का ऐलान न फरमाया। हम ये जानते हैं कि सैकड़ों साहबे किराम ने इस बात की गवाही दी कि हुजूर ने हम सब से बैअत करवाई थी मौला अली की, और अज़वाज मुतहरात से भी गदीर के मैदान में। फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ के तनाजुर में अल्लाह ने मौला अली की सच्चाई, हुजूर की सच्चाई, मौला अली की ज़ौजा बीबी पाक की सच्चाई, हसनैन शरीफैन की सच्चाई का बयान फरमाया है। जब कुरान मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा में मौला अली और उनके खानदान को तहारत का सर्टिफिकेट अता फरमा रहा है, और मस्जिद नबवी से उन सब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जो 24 घंटे ताहिर नहीं रहते, मसादीक़ तहारत नहीं, और अली और बतूल के दरवाजे को खुला रखा जाता है कि इन दो पर ऐसी कोई हालतें तारी नहीं होती कि जिनकी वजह से ये मस्जिद में न जा सके। तो यही आयत तत्हीर बता रही है कि सारी उम्मत एक तरफ, अली और बतूल एक तरफ, इन पर कोई हालत ऐसी तारी नहीं होती कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से दूर हो सके या अल्लाह के घर से दूर हो सके। जब हम ये जानते हैं कि बद्र के हीरो भी अली है, ओहद की हारी हुई जंग भी अली ने जीती है, खंदक के हीरो भी अली है, खैबर के हुनैन के हीरो भी अली है, कुल्ले कुफ्र का सर काटने वाले अली है, कुल्ले ईमान की सनद लेने वाले अली है, ज़रबत अली यौमल खंदक़े अफदल मिन इबादत थक़लैन के मिस्दाक भी अली है, अन्नज़र इला वजह अली इबादा के मिस्दाक भी अली है, हुब्बो अली इबादा के मिस्दाक भी अली है। हम जब ये जानते हैं जिक्र अली इबादा के मिस्दाक भी अली है, और हुजूर ये कहते हैं अक़ज़ा उम्मती अली इब्न अबी तालिब, और कुरान ये कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इन कुर्बा की मवद्दत को अल्लाह अजर रिसालत के तौर पर वाजिब फरमा रहा है। और सरकार फरमाते हैं अलीयुन अक़रब मिन्नी, अली मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। जब हुजूर ये फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अरदारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, जब हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्ते पैगंबर पर तीसरे दिन विलादत के सूरह मोमिनून की 10 आयतों की तिलावत करते हैं, और तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के हाफिज हैं, पैदा होते हुए भी जब आपके शागिर्द मैसम तम्मार जैसे आलिमुल गैब नजर आते हैं, गैब की खबरें देते हैं, जब आपके शागिर्द सलमान जैसे कामिलुल ईमान नजर आते हैं, जब आपके शागिर्द बूजर जैसे इस दर्जे पे फाइज हैं कि आसमान ने किसी ऐसे शख्स पे साया नहीं किया, जमीन ने जगह नहीं दी जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। अल अम्मारो माल हक वल हक माल अम्मार, जब हुजूर फरमाते हैं अली के शागिर्द के बारे में, अगर अली के शागिर्द बिलाल जैसे अजान नहीं देते तो मुसलमानों की नमाज की सबील नहीं होती। खाजिने बैतुल माल
अली के शागिर्द हैं, बिलाल जैसे, सुहैब जैसे, इब्ने अब्बास जैसे मुबल्लिग हैं, मुफस्सिर हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इमामत व विसायत व खिलाफत जाननशीनी इस्मत के लिए क्या दलाइल चाहिए होंगे। कुरान भरा हुआ है अली की इमामत के बारे में, खिलाफत के बारे में, विसायत के बारे में, विलायत के बारे में। दावत जुल अशीरा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, कौन है कि जो इस अम्र रिसालत में मेरे साथ बोझ बटाए, वो मेरा अखी होगा, वो मेरा खलीफा होगा, वो मेरा वसी होगा। अशीर में भी यही कहा और गदीर में भी यही कहा। तो 23 सालों में जो इस्लाम की दो ब्रैकेटें हैं, एक ब्रैकेट का नाम अशीर है, आखिरी ब्रैकेट का नाम गदीर है। अशीर में भी अली अली है, गदीर में भी अली अली है। तो आप अपनी जिंदगी में अली को माइनस करके नजात कैसे पा सकते हैं? अली कसीम मुन्नारे वल जन्नत है, अली साकिए कौसर है, अली शाफिए महशर है, अली का खानदान मिसदाक के कौसर है, अली ज़ौजे बतूल है, वसीए रसूल है, अबुल अइम्मतिल अबरार है, काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, सय्यदुल वसीयीन, सय्यदुल मुस्लिमीन, सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, इमामुल बररा, कातिलुल कफरा वल फजरा है। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान भी दलाइल दे रहा है, हदीस भी, आइम्मा अतहार भी। हजरत उमर साहब का ये इरशाद, आजाज़तिन निसाओ अन तलिदना बिस्ला अली इब्न अबी तालिब, अरब की औरतें बल्कि दुनिया की औरतें आजिज हैं कि अली जैसा बच्चा जने। इस बात की दलील है वो खुद से अली को अफजल समझते हैं। सियाह सित्ता में 70 मरतबा कौले हजरत उमर साहब ना होता, लौला अली का उमर, अगर वो अपने आप को हजरत अली से अफजल समझते होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको सोचना होगा, बाद रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम अफजल कायनात हैं। हत्ता अंबिया मा सलफ, सारे के सारे, खा वो रसूल हो, नबी हो, उलुल अज़्म हो, साहिब किताब हो, साहिब शरीयत हो, वो दर्जे में कम है। और हसनैन का बाबा दर्जे में अफजलो आलाओ बालाओ वाला है। हजरात व ख़वातीन, याद रखिएगा, कुरान की आयतों को पढ़ा जाए, अशरात दरकार है। आप बताएं, जब अल्लाह फरमाता है हजरत इब्राहिम को, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको लोगों का इमाम बनाने जा रहा हूं, आप ईमान से बताएं, जब लोगों का इमाम बनाना है तो अल्लाह कह रहा है मैं बनाने वाला हूं। तो जब इमामुल मुत्तकीन बनाना है मसलन, तो शूरा से तो नहीं बनेगा। जरूरी है कि अल्लाह ही फरमाए और ऐलान उसका रसूल करे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ मौला अली को नहीं, अली के शियों को भी गारंटी दी है नजात की। या अली अंत वशियतों का हुमुल फाइजूना यौमल क़ियामा। ऐसे तो नहीं, साहबे किराम फरमाते थे, अद्दिबू औलादकुम बे अखलाक आले मोहम्मद। कुछ नुसूस, नस की जमा है नुसूस, कुछ नुसूस जली होती है, कुछ नुसूस खफी होती है। इंशाल्लाह आइंदा कुछ मजालिस में जो अशरे से हटके होंगी, मैं ज़रूर कुछ गुजारिशात पेश करूँगा। मगर आज की मजलिस में मैं टर्निंग पॉइंट दे के आप तमाम हजरात व ख़वातीन से इजाज़त चाहता हूँ। जो नुसूस से जली, नस से जली के तौर पर लिखी गई, मसलन उनमें नंबर 1 लिखा गया
کہ हुजूर ने फरमाया था, हुजूर करीम ने फरमाया, सल्लमू अला अलीयिन बेइमरतिल मोमिनीन, अली पर सलाम करो मेरे असहाब व अज़वाज, और या अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम करो। फरमाते हैं जब नबी ने अपनी जिंदगी में एक अमीरुल मोमिनीन बना दिया तो उसके बाद न किसी शूरा की ज़रूरत है, न किसी काउंसिल की ज़रूरत है। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, इस अम्र में नहीं होगा, इसलिए कि जान नशीन पैगंबर वो होना चाहिए जो इस्मत रखता हो पैगंबर की तरह। दूसरी नस से जली बयान की गई, हाजा खलीफती फीकुम मिन बादी फस्मऊ लहू व अतीऊ, ये मेरा खलीफा है तुम में मेरे बाद, बस इसकी बात को सुनो और इसकी इताअत करो। जब इमाम अली हुजूर के दौर में खलीफा बन गए, सहाबा किराम ने उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया, बखिन बखिन के जरिए मुबारकबादें भी दे दी, हाथ के नीचे हाथ रख के बैअत भी कर ली, तो फिर शूरा बनाने की जरूरत क्या थी? फिर किसी और को खलीफा बनाने की जरूरत क्या थी? मेरे एक करम फरमा ने पूछा कि आप कुरान में दिखा दें कि 12 इमामों के नाम लिखे हुए हों। तो मेरे बुजुर्गवार, आप कुरान में दिखा दें हजरत अबू बकर का नाम लिखा हो, हजरत उमर का नाम लिखा हो, हजरत उस्मान साहब का नाम लिखा हो, जैद गुलाम का नाम तो लिखा हुआ है, मगर इन सकीफ़े बनी साइदा के जो खलीफे हैं इनका तो नाम कहीं नहीं लिखा हुआ। या 3 रकअतें मगरिब की कुरान से दिखा दें, 2 फजर की दिखा दें, 4 असर की दिखा दें। कुरान मजीद में हर चीज नहीं होती, वहां पर हेडलाइंस होती है, फिर हदीस रसूल से पूछा जाता है और नबी करीम फिर उसकी वजाहत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर जो हमारा तकबीर का नारा है, यह कुरान में इकट्ठा कहाँ लिखा हुआ है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये तो सवाल ही बिल्कुल अजीब सा है। हाँ, ये हम दिखा सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है इमामत का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इमाम बनाया तो उनसे कलिमात का इम्तिहान लिया। व इज़्बितला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, मुब्तला किया इब्राहिम को उनके रब ने, और उन्होंने जब कंप्लीटली पास कर लिया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, उन्होंने कहा मिन ज़ुर्रियती, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख। अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिम कभी भी ला यनालु, जालिम इस ओहदे इमामत को नहीं ले सकेगा। तो अब मैं सवाल करता हूं कि जिनके स्कूल ऑफ थॉट में कुछ जालिम हैं बाद वाले, यानी 60 हिजरी के करीब जो जालिम इमाम बने हैं, बताएं उनका सिस्टम ठीक है या उनका सिस्टम ठीक है जिनके पहले से लेकर आखिरी तक सारे के सारे आदिल हैं, जुल्म का बल्कि तर्क औला का कहीं गुजर नहीं है। तीसरी दलील नस्स जली के तौर पे कहते हैं हाजा अखी व वसी व खलीफती मिन बादी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे वसी है, ये मेरे खलीफा हैं। व वारिसी, और ये मेरे वारिस हैं। फस्मऊलहू वातियू। चौथी दलील अंताखी व वसी व खलीफती मिन बादी व कादिया दैनी। पांचवी दलील अलम तरजान तकूना अखी व खलीफती मिन बादी। छठी दलील अंत सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, आप मुसलमानों के सैयद हैं। बात ही खत्म हो गई। जब सैयद मौजूद है तो किसी उम्मती को कैसे खलीफा बनाया जाएगा? जब सैयद मौजूद है, आका मौजूद है, तो गुलाम कैसे मिंबर पे बैठेगा? जब इमामुल मुत्तकीन मौजूद है तो कोई गैर इमामुल मुत्तकीन कैसे बैठेगा? जब कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, किसी और को कायद बनने का हक कैसे है? इन्नल्लाह तला इलल अर्ज़ इत्तिलाअन फख्तारनी
फीहा फ़ख्तारनी नबिया फ़ख्तारनी मिनहा फ़जालनी नबिया सुम्मा तला सानियतन फ़ख्तारा मिनहा अलिया फ़जालहू इमाम। अली ने मुझे, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अली को इमाम बनाया। सुम्मा अमरनी अन अत्तखिज़हू अखन व वसीयन व वज़ीरा, फिर अल्लाह ने मुझे कहा मैं अली को अपना भाई बनाऊं, करार दूं, वसी करार दूं, वजीर करार दूं। आठवीं दलील, हुजूर ने अब्दुल्ला से कहा, इब्ने समरा, इज़ा इख्तलफ़ल अहवा, जब इख्तिलाफात वाक़या हो जाए, व तफ़र्रक़तिल आरा, और लोग एक दूसरे की मुखालफत करने लग जाएं, फ़अलैका बिअली इब्ने अबी तालिब, तो तुम अली इब्ने अबी तालिब की रस्सी को थामना, उनके दामन को थामना। फ़इन्नहु इमाम उम्मती व खलीफती, वो मेरी उम्मत के इमाम हैं और उन पर मेरा खलीफा है। अंत इमामुम इब्नो इमाम, इमाम हुसैन को देखा हुजूर ने तो फरमाया अंत इमाम इब्नो इमाम, आप इमाम भी हैं, इमाम के बेटे भी हैं। अबुल अइम्मा व अंत हुज्जतुन इब्नुल हुज्जा, आप खुद भी हुज्जत हैं, आपका बाबा भी हुज्जत है। तो जब ये 9 दलीलें फ़िलहाल जहन में रख लीजिए, और कुछ थोड़ी सी आयतें मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की, ये मुख्तसर सा जवाब हो जाएगा अपने उन बुजुर्गवार का जो चाह रहे थे कि सिर्फ एक नस दे दें। तो नस के तौर पर ये भी अर्ज़ करूँगा, अगर आप खलीफा पूछ रहे हैं तो खलीफा का मेयार ये है, या आदमो उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में। तो जब आदम को खलीफा अल्लाह ने बनाया तो किसी और को शूरा नहीं बना सकते। दूसरे जो खलीफा हैं, उखलुफनी फी कौमी, ए भाई हारून, मेरी कौम में आप खलीफा बन के रहें। तो ये हारून खलीफा है अल्लाह के हुक्म से नबी मूसा की गैबत में। तीसरे खलीफा या दाऊदो इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, ये 3 खलीफे हैं, तीनों मासूम हैं, तीनों को अल्लाह ने बनाया है। तो अब ये जो उम्मत मोहम्मदिया के खलीफे होंगे, इनको उम्मत तो नहीं बनाएगी। बिला फासिल हम इसलिए कहते हैं कि जब गदीर में, बल्कि अशीर में, अशीर से गदीर तक जब अली ही खलीफा बनते गए, हुजूर के दौर में हुजूर डिक्लेयर फरमाते गए, तो फासला तो होना ही नहीं चाहिए। बिला फासिल वही खलीफा है। और सवाए के मोरका में लिखा है इब्ने हजर ने कि हुजूर से जब पूछा गया तो हुजूर ने बाकायदा नाम बताए हैं, सारे खलीफों के नाम बताए हैं, और इसनाशर भी बताए हैं, 12 खलीफों के नाम बताए हैं। कोई भी मेरा सुन्नी भाई हज़रत अबू बकर साहब को इमाम अबू बकर नहीं कहता, हज़रत उमर साहब को इमाम उमर नहीं कहता, हज़रत उस्मान साहब को इमाम उस्मान नहीं कहता। यही इस बात की दलील है कि हमारे सुन्नी भाई बहन जानते हैं कि इमाम अली का दर्जा और है, और सकीफ़ाई शूरा वालों के खलीफों का दर्जा और है। कोई इमामुल मुत्तकीन खुद को नहीं कहलवा सका सिवाय अली के, हालांकि अमीरुल मोमिनीन कहलवा लिया, इसलिए कि यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, इमाम ने दिन दिलवानी है जन्नत, और क़यामत के दिन इमाम के साथ उठना है। बाकी लोगों को अपना यकीन नहीं जन्नत में जाने का, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दम कदम से उनके ग़ुलाम भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सही ग़ुलामों में शुमार फरमाए, और हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलने की तौफ़ीक़ दे, और हमारे शिया और सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो मनसूस मिनल्लाह इमाम है, बल्कि 12 के 12 जो मनसूस मिनल्लाह इमाम हैं, इन्हीं को इमाम मानने की तौफ़ीक़ दे। और जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबे के स्टेटस के मुताबिक बने थे,
यानी वो काबा उस वक्त क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था, तो काबा समझकर फरिश्तों ने उनको सजदा किया था। तो खलीफा वो होना चाहिए जो फरिश्तों का किबला हो, काबा बन सके। इसलिए हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा भी मानते हैं, बिला फसल वसी पैगम्बर भी मानते हैं, वलीउल्लाह भी मानते हैं, मौलल मोमिनीन भी मानते हैं, उनको इमाम अव्वल भी मानते हैं। और इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, अव्वल इमाम था, और अव्वल बैत में उसका तशरीफ लाना खुद उसकी तहारत व इस्मत की बैन और वाज़ेह दलील है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उम्र भर पैगम्बर अकरम से वफा की। वो कुरैश के बच्चों को मारने, ललकारने से लेकर और नबी को गुस्ल देने, कर्ज उतारने, दफन करने, जनाजा पढ़ाने तक न किसी मैदान में पुश दिखाई। 3 साल तक शेब अबी तालिब में वो या उनके भाई सोते रहे कि नबी की जान बच जाए। ख़ानदान नबी को लेके गए तो हज़रत अली हिजरत के बाद लेकर गए हैं। हर फ्रंट जो जीता है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। इसलिए हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इमाम भी मानते हैं, कायद भी मानते हैं, अपना रहनुमा भी मानते हैं, खलीफा बिला फसल भी मानते हैं, वसी रसूल भी मानते हैं, वलीउल्लाह मानते हैं। और ये भी हम मानते हैं कि अगर कोई अल्लाह की निस्बतों वाला ऐसा बंदा बैठा हो जो यदुल्लाह हो, जम्बुल्लाह हो, वलीउल्लाह हो, ऐनुल्लाह हो, लिसानुल्लाह हो, यदुल्लाह हो, नफ्सुल्लाह हो, उसको छोड़कर किसी और को खलीफा, इमाम, वली, वसी, हाकिम, हादी तस्लीम करना ये इंसाफ की बात नहीं। आप अपने अकीदे पे कायम रहें, हमें अपने अकीदे पे कायम रहने दें, मगर सोचिएगा ज़रूर कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ ये नाइंसाफ़ी है कि जिनका तज़किरा कुरान और हदीस में इतना है कि सारे असहाब का मिल के उशरे अशीर भी जिक्र नहीं, इनका तज़किरा हर जगह है। तो ऐसे इमाम को, ऐसे खलीफे को, ऐसे हादी बरहक को, ऐसे शाफ़े मैशर को, साक़ी कौसर को, हलाल मुश्किलात को छोड़ना नहीं चाहिए, जो असहाब का भी, खलीफों का भी हलाल मुश्किलात। बस मेरे अजीज़ों, मजलिस तमाम हो गई। मुहर्रम की आमद है इंशाअल्लाह अलमहदी सेंटर में। 18 को तो हमारे भाई प्रोफेसर राजा हसन रज़ा की तरफ से, जो उनके वालिद साहब क़िबला अजीम शायर अहले बैत राजा अब्दुल गफूर बुजुर्गवारम हज़रत जौहर निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरसी है। और ज़ाहिर है कि इसाले सवाब राजा साहब की वालदे माजिदा, फूफी, मामू, भाइयों, तमाम अज़ अक़रबा और इनके ससुराल वालों के अजीज़ों, सब के इसाले सवाब की मजलिस होगी 18 को मंगल को। और इंशाअल्लाह बुध से जो मजालिस हैं शुरू हो जाएंगी इस्तक़बाल मुहर्रम के साथ, यानी 19 से लेकर 31 तक डेली मजालिस होंगी। और इंशाअल्लाह मजालिस की इजाज़त मिल चुकी है। मेरे पास अभी भी पुलिस वालों के मैसेजेस आए हुए हैं, आज भी बात हुई है। और पुलिस ऑफिसर का नाम स्कॉट है, और जो ड्यूटी चीफ है, डेप्यूटी चीफ, वो कल आ भी रहे हैं हमारे पास। जुमा की नमाज वाले ज़रा रुक जाएं 5 मिनट के लिए, वो आ भी रहे हैं। जुलूस की इजाज़त भी मिल चुकी है, जो मैनहट्टन का जुलूस है उसकी इजाज़त भी मिल चुकी है, और जो ब्रुकलिन का जुलूस है उसकी इजाज़त भी मिल चुकी है। इंशाअल्लाह ज़दारी होगी, मगर आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदारा सफाई का ख्याल रखें, खुदारा मेहरबानी फरमाएं अपनी रूटीन्स को चेंज करें, मुसाफे ना करें, मुआनके ना करें, बगलगीर ना हो, करीब करीब खड़े ना हो, जम घटे ना बनाएं, हर प्रोग्राम को शॉर्ट रखें ताकि ना इंतज़ामिया को, पुलिस को तकलीफ़ हो, ना हमारे सेंटर की इंतज़ामिया को तकलीफ़ हो। सफाई करके बे अज़राह करम सेंटर से बाहर जाएं, सेंटर के बाहर से भी सफाई करें, अंदर से भी। आप हजरात को अल्लाह ताला ख़वातीन को अज्र जज़ा मरहमत फरमाए। इंशाअल्लाह ये जो मुहर्रम आ रहा है, मेरा ईमान है शहीद आज़म के तज़किरे के सदक़े में कोरोना वायरस से अल्लाह हम सबको बचा देगा। फिर कवारियत नहीं फैलानी मेरे भाई बहनों,
किसी पर सब व शत्म नहीं करनी। हमारे किसी बुजुर्ग ने आज बड़ी कम लुत्फ़ी फरमाई है और हमें कहा है कि जी शिया सब व शत्म करते हैं, गालियां देते हैं। वल्लाह हमारे मज़हब में तो गाली जायज़ ही नहीं है। हमें तो इमामों ने दुआएं सिखाई हैं। और तबर्रा का गलत मफहूम ना लीजिए, तबर्रा का मफहूम गाली नहीं है, तबर्रा का मफहूम बरात है। मुशरिकीन से बरात के लिए सूरह तौबा आई है। बरात करते हैं मुशरिकीन से, कुफार से, मुल्हिदीन से, उनसे जो मुनाफिकीन हैं। साहबे किराम का जिन्होंने हुजूर से वफा की, हम उनसे वफा करना अखलाकन फ़र्ज समझते हैं। अज़वाज मुताहरात जिन्होंने हुजूर पाक के साथ वफा की, बासफ़ा अज़वाज मुताहरात हमारी उम्माहात हैं, उम्माहातुल मोमिनीन हैं। हम अपने बुज़ुर्गों, अपने वालिद के जो दोस्त हैं, उनके बीवियों को चची अम्मा कहते हैं या अम्मा कहते हैं, तो हम हुजूर की बीवियों को अपनी माएँ नहीं समझेंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता। कुछ अगर गलत किस्म के लोग गलत नज़रियात फैलाते हैं या गाली गलौज करते हैं, उनका शिया मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हर मज़हब में होते हैं, आप देखते हैं हर मज़हब में होते हैं। लिहाजा शिया सुन्नी इत्तेहाद बरकरार रखना है, वहदत उम्मत बरकरार रखनी है। तमाम खुतबा से भी दरख्वास्त करूँगा फ़िरका वारियत पर मुश्तमिल कोई तकरीर न करें। अज़ादारों, आपका काम है पुरसा लें और पुरसा दें। ये दिन है पुरसे के, तान तशनी के ये दिन नहीं है। हाँ, लान तान ज़रूर करेंगे, कातिलान हुसैन पर करेंगे, कातिलान उम्मुल मोमिनीन पर करेंगे, कातिलान अमीरुल मोमिनीन पर करेंगे, कातिलान इमाम हसन मुज्तबा पर करेंगे, मुनाफिकीन पर करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसके साथ हमारे सुन्नी भाई भी इंशाअल्लाह शरीक को शामिल होंगे। अल्लाह आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को, नाज़रीन व नाज़रात, ज़िंदा व सलामत रखे। अलमहदी टीवी 24 घंटे नशरियात नशर करेगा इंशाअल्लाह। हमारी जो टीम है अलमहदी मैनेजमेंट कमेटी AMC और हमारी जो इंतज़ामिया है अलमहदी सेंटर की, वो डट के खिदमत करेंगे। और हमारे जो मातमी हैं अंजुमन गुलामान मेहदी वाले, वो भी ज़बरदस्त खिदमत करेंगे। हमारी बहनें भी खिदमत करेंगी। खुदारा बच्चे ना आएँ, बूढ़ी ख़वातीन ना आएँ, बूढ़े मर्द ना आएँ, बीमार ना आएँ, सेंटर के साथ राब्ते में रहें, डुप्लिकेशन न करें मजालिस की। जहाँ 2-2 3 मजालिस होती हैं, वहाँ एक कर लें, ड्यूरेशन कम कर लें, ताकि लेस डेंजर हो कोविड-19 का। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप तमाम हज़रात ख़वातीन को ज़िंदा व सलामत रखे। मजलिस तमाम हुई। जैसे मुहर्रम करीब आता है, हमारे मराजे के ख़िलाफ़ लोग शुरू हो जाते हैं, रहबर मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह है, वो मुझसे और आपसे बड़े आज़ादार हैं, वो मुझसे और आपसे बेहतर मातमी है, मुझसे और आपसे बेहतर। हाँ, उम्र बढ़ जाती है तो बंदा ज़ोर से मातम नहीं करता, वो अलग चीज़ है। जवानी में वो भी हमारी तरह ही मातमी रहे। खुदारा इन साजिशों से बचिए, अपनी सफ़ों में भी वहदत व इत्तेहाद रखिए। ज़ाकिरीन किराम गैर ज़िम्मेदाराना रिवायात बयान न करें, ऐसी रिवायात खुतबा बयान न करें कि जिनसे अकायद की धज्जियाँ उड़ जाएँ और मज़हब अहल बैत को डैमेज हो। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं, इफ्तिराक का रास्ता ना अपनाएं। बस तकरीर तमाम हुई। सिर्फ मैं आज 3 जुमले छोटे छोटे अर्ज़ करूँगा। पहला जुमला मैं ये कहूँगा कि ये उस गरीब की मजलिस है कि जो इन दिनों में जंगलों में फिर रहा है, जिसे नाना की उम्मत ने मदीना में नहीं रहने दिया, उसने कुछ तो खून नहीं कराया, उसने तकद्दुस से हरम मदीना बरकरार किया, उसने चाहा कि गुंबद खजरा की आबोताब बरकरार रहे, उसने चाहा शान रिसालत में फ़र्क ना आए, कैपिटल ऑफ इस्लाम में कोई डैमेज ना हो। वो मुहाजिर मुसाफिर बन के चल पड़ा, उसे हरम इलाही में भी पनाह न लेने दी गई, तो हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल के निकल पड़ा। मुझे अरमान इस बात का है, जब ये शहजादा निकल रहा था तो मदीना सारा क्यों ना निकल आया, क्यों ना उन्होंने ह्यूमन चेन बना के कहा, फातिमा के लाल, हमें वो ज़माना याद है जब रसूल आपको
اپنی پشت پر ناز برداری کے لیے بٹھاتے تھے، آپ کو اور آپ کے بھائی کو عید کے دن اپنے کندھوں پہ سوار کرتے۔ ہم نے تو دیکھا تھا آنکھوں سے، جبریل آپ کا خیاط بن کے آتا تھا، آپ کی اماں کی چکی اقابیل چلاتا تھا، آپ کے گھر کے جھاڑو فرشتے دیتے تھے۔ مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ احرام والے آگے آ جاتے، ہم فرزند رسول کو حرم الہی نہیں چھوڑنے دیں گے، مگر فاطمہ کا لال غربت کے ساتھ چل پڑا، منزلیں طے کرتا ہوا راستے میں بری خبریں ملتی گئی۔ کبھی خبر مل گئی کہ مسلم شہید ہو گئے، کبھی ہانی کی خبر مل رہی ہے، کبھی اور دوستوں کی خبریں مل رہی، کبھی میثم تمار کی شہادت کی خبر مل رہی ہے، اور کبھی ہر راستہ روک رہا ہے، اور ہر کہتا ہے راستہ بدل لے امام۔ امام فرماتے ہیں امام راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، راستہ بدلنے والا نہیں۔ اور پھر ویران جنگل میں ڈیرا لگایا، 7 کو پانی بند ہوا، 7 کو خیمے اٹھا لیے گئے دریا کے کنارے سے۔ حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، اپنی بہنوں کی چادریں بھی دے دی، مگر دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت